Once Gandhi said, hate the sin but not the sinner. یعنی گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہیں. Be the change you want to see in the world. گاندھی جی کہتے تھے وہ تبدیلی بنے جو دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. Gandhi said, a man but a product of his thoughts. What he thinks he becomes. یعنی انسان جو سوچتا ہے وہی اسے حاصل ہوتا ہے. Live as if you are die tomorrow. Learn as if you are to live forever. یعنی گاندھی جی کہتے تھے اس طرح جیو کہ کل تمہیں مرنا ہے, اس طرح سیکھو کہ تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. یعنی گاندھی کہتے تھے خوشی تب ہوتی ہے جب آپ جو سوچتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ہم آہنگی میں ہیں. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dit que les masses de l'Inde, si c'était nécessaire, recourraient à la violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. جن کے کہنے پر چلی تھی آزادی کی آندھی, جی ہاں وہ تھے مہاتما گاندھی. بنا کسی کرسی کی لالچ کے آزاد ہند کی تاریخ میں جس شخص نے اپنی آخری سانس تک لڑی آزادی کی لڑائی, جی ہاں وہ تھے مہاتما گاندھی. کاغذ کے ٹکڑوں پر جس کی تصویر کے نقش چھپ جائیں تو وہ بن جاتے ہیں نوٹ, جی ہاں وہ تھے گاندھی. اس مذہب کے ماننے والے جس مذہب کا کوئی ٹھیکیدار نہیں, وہ مذہب ہے انسانیت کا مذہب, وہ مذہب ہے سچ کا مذہب, وہ مذہب ہے اپنے حق کا مذہب, جی ہاں وہ تھے گاندھی. ٹرین پر سوار ہوتے وقت ایک جوتا گرنے کی وجہ سے دوسرا بھی اتار کر پھینک دیا. کسی نے پوچھا کہ دوسرا اتار کر کیوں پھینک دیا, تو کہا کہ ایک میرے کسی کام کا نہیں, مگر دونوں اگر کسی کو گرے ہوئے مل گئے تو شاید اس کے کام آ جائیں, جی ہاں وہ تھے گاندھی. قوم کی اس خاموش آرزو کو دی ہمت کی آواز جس کا نام تھا آزادی, جی ہاں وہ تھے مہاتما گاندھی. وہ صرف ایک شخص ہی نہیں تھے, وہ تھے جذبوں کی آندھی, جی ہاں وہ تھے مہاتما گاندھی. ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم ڈاکٹر افروز عالم صاحب کی جانب سے ہمیں جس پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع دیا گیا وہ تھا مہاتما گاندھی. یعنی مہاتما گاندھی کے سیاسی اور تعلیمی اور ہر قسم کے نظریے کے بارے میں ویڈیو کرنا. اس ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے ان کی موومنٹس کے بارے میں, ان کی بکس کے بارے میں, انہوں نے جتنی بھی تاریخ چلائی اس کے بارے میں, اس کے بعد ان کے سیاسی نظریے اور تعلیمی نظریے کے بارے میں. So let's explore the personality of M.K. Gandhi. مہاتما گاندھی کی سوانحی حیات. مکمل نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی. انگریزوں کی حکومت کو ہلا کر رکھ دینے والے مہاتما گاندھی کی زندگی کا سفر شروع ہوا 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے پوربندر علاقے سے. ان کے دادا کا نام تھا اوٹا گاندھی اور ان کے بیٹے کا نام تھا کرم چند گاندھی, جنہوں نے 4 شادیاں کی تھی اور چوتھی بیوی کے بیٹے تھے مہاتما گاندھی. اور مہاتما گاندھی کے 4 بیٹے تھے ہری لال, منی لال, رام داس اور دیو داس. مہاتما گاندھی کی والدہ کا نام تھا پتلی بھائی. اگرچہ ان کی پیدائش پوربندر میں ہوئی مگر کچھ عرصے بعد ہی راجکوٹ منتقل ہو گئے اور وہیں سے ہوئی گاندھی کی ابتدائی تعلیم. بچپن سے ہی کتابوں کو اپنا حقیقی دوست ماننے والے گاندھی 9 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ جب اسکول گئے تو بہت شرمیلے تھے. آگے چل کر ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق محض 13 برس کی عمر میں گاندھی کی شادی ہوئی کستوربا گاندھی سے. جب گاندھی 16 برس کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان تمام مشکلوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے 1887 میں احمد آباد سے ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کی اور پھر 1888 کے دور میں لندن چلے گئے. وہاں سے مکمل کی بیرسٹری کی ڈگری اور واپس لوٹے ہندوستان 1891 میں.
मगर बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल करने के बाद भी उन्हें हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में बहुत भटकना पड़ा। फिर 1893 में अब्दुल्ला सेठ एंड कंपनी नामी एक कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इसी नौकरी के बायस गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। अब्दुल्ला सेठ की जानिब से केस लड़ा। साउथ अफ्रीका में गुजारे गए जिंदगी के पल गांधी के लिए सबसे मुश्किल पल थे, क्योंकि उन्हें वहाँ भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा था। उससे कब्ल सफ़र के दौरान कुछ अंग्रेज़ों ने आकर उनके साथ बुरा सलूक किया। मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी जब कोर्ट पहुंचे तो जज ने कहा कि अपनी गुजराती पगड़ी उतार कर मुकदमा लड़ें। पगड़ी को उतार कर तमाम बातों को बर्दाश्त किया और सब्र व तहम्मुल के साथ अपने काम को अंजाम देते रहे। तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने की वजह थी सेठ अब्दुल्ला से किया हुआ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी वजह थी पैसों की कमी। चूँकि गांधी अपने असूलों के गुलाम थे और सच्चे इंसान थे, गांधी के सियासी सफ़र की शुरुआत भी साउथ अफ्रीका से ही हुई। उन्होंने वहीं शुरुआत की सत्याग्रह यानी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की। ये दौर था 1906 का, और ये तारीख शुरू करने की वजह थी रंग, नस्ल, जात पात के भेदभाव को ख़त्म करना, जिसका शिकार हो रहे थे वहाँ पर रहने वाले हिंदुस्तानी लोग। और फिर 1915 को गांधी वापस लौटे हिंदुस्तान और ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अपनी खिदमत, ईमानदारी, सच्चाई के बायस वो तमाम लोगों में मकबूल हो गए। उसके बाद अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए गांधी जी ने 1947 तक बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये वही महात्मा गांधी हैं जिन्हें हम बाबाए कौम यानी फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। वो दिन था 30 जनवरी 1948। वक्त था शाम 5:55, जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने उन्हें बिरला हाउस के बाहर 3 गोलियां मारकर हम सब से ओझल कर दिया। महात्मा गांधी की तालीमी दुनिया। मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी और एक वकील के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, इनकी शख्सियत एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट से भी याद किए जाते हैं। गांधी जी तहरीक आज़ादी के सरबराह भी रह चुके हैं, और जिनका नाम फ्रीडम फाइटर में सरे फहरिस्त लिया जाता है वो गांधी। गांधी जी ने अपनी तालीमी दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपनी पूरी काविश को लगा दिया। लिहाजा उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को अपने शहर पोरबंदर से शुरू किया। गांधी जी ना खेलकूद में दिलचस्पी रखते थे और ना ही कभी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो एक अच्छे अखलाक के मालिक और शर्मिला किस्म के लड़के थे। फिर उन्होंने शहर पोरबंदर के स्कूल को छोड़कर राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने सामलदास आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं से मुख्तलिफ किस्म की डिग्री हासिल की, लेकिन उनके पढ़ाई का जुनून अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। लिहाजा उन्होंने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया और यूसीएल कॉलेज से अपने लॉ की डिग्री मुकम्मल की और हिंदुस्तान वापस लौट आए। ट्रस्टशिप यानी ईमानतदारी। ईमानतदारी के मुताबिक गांधी कहता है कि हर अफराद को अपनी जायज़ कमाई का उतना ही हिस्सा अपने पास रखना चाहिए जिससे उसकी फौरी ज़रूरियात पूरी हो सके। उससे ज़्यादा अगर हो तो वो समाज की भलाई के लिए काम करे। गांधी की नज़र में हर इंसान के पास कम से कम रहने के लिए एक मकान, खाने और पहनने के लिए कपड़े हो और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो। गांधी कहता है कि लोगों को खुदा की दी हुई दौलत को खुदा के बंदगान के हवाले कर देनी चाहिए। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। आइडियल स्टेट यानी राम राज्य। इसमें गांधी कहता है कि एक ग्रुप ऑफ विलेज होगा जिसमें एक ऐसी तहजीब होगी इसमें किसी के पास क्यूरेसिव पावर नहीं होगी। इसमें अवाम इखलाकी कायल होकर काम करेंगे, सभी के पास रिवायती हक होंगे,
वो गॉड पे भरोसा रखेंगे और नेचर से सीखेंगे। उनके राम राज्य में स्टेट का रोल मिनिमलिस्ट होगा। वो बिलीव करते थे थ्योरो के कॉन्सेप्ट में। वो कहते थे गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नस इज लीस्ट। उनके मुताबिक हुक्मरान वही अच्छा जो लोगों पर हुक्मरानी कम करे, उन पर कवानीन ना बनाए। अब गांधी कहता है कि इस विलेज को चलाने के लिए एक आरजी कौमी नुमाइंदा होगा जो कुछ वक्त के लिए रूल करेंगे। उसके बाद वहाँ की आवाम खुद कैपेबल हो जाएंगे कि उसको क्या करना है, किस तरह के फैसले लेना है, किस तरह रूल करना है। गांधी जी के बारे में बात करना आसान नहीं है। हालांकि हर एक इंसान उनके बारे में बेहतरीन ख्यालात रखता है। और हम चूँकि देखते हैं कि गांधी जी किन्हीं एक चीज़ों पे हम उनको कैद नहीं कर सकते। उन्होंने मुकम्मल एक तस्वीर पेश की जिसमें इंसानी कदरों की बात की, इंसान के आज़ादी की बात की, तमाम तरह के बंधनों से मुक्ति की बात की। उन्होंने सिर्फ सियासत की बात न की बल्कि एक मुकम्मल सूरत हाल एक पेश की जिसमें इंसान को जहां वो सारी तरह के बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, साथ में वो समाज की भी एक बेहतर तस्वीर खींचते हैं। कैसे एक बेहतर समाज की तस्वीर दी जाए वो हम देखते हैं गांधी जी के फिक्र में हमें देखने को मिलती है। अब एक सरसरी सी नज़र उन मारूफ शख्सियतों पर डालते हैं जिनका मताला करने के बाद गांधी ने चुना सच का रास्ता। इन्हीं लोगों ने बदला गांधी के नज़रिए को। गांधी के ख्यालात में तब्दीली आई। उन्होंने अलग सोच से इंसाफ हासिल करने का तरीका अपनाया। आखिर में अपनी हयात को खिदमत हल्क की बेहतरी और खुशनुदी के लिए इस राह पर चल पड़े, यानी पुरअमन जदोजहद की राह, सच की राह, यानी वो राह जिसमें जुल्म को बर्दाश्त करना, ताकत और कुव्वत के बावजूद अदम तशद्दुद से जवाब देना। एक मशहूर ज़माना राइटर थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय की ज़िंदगी की सादगी और मकसद की पाकीज़गी के तसव्वुर से बहुत मुतासिर थे। इनकी किताब थी बुक द किंगडम ऑफ गोल इज़ विद इन यू। इस किताब से सीखा गांधी ने अहिंसा का असूल। दूसरी नाम ज़माना शख्सियत थी हेनरी डेविड थारो, जो एक फितरत पसंद, मजमून निगार और शायर भी थे। तीसरे नंबर पर आते हैं एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सकरात, जिनका तल्लुक़ एथेंस से था। सकरात को फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी माना जाता है। इनकी सच्चाई से मुतासर होने के बाद गांधी ने इन पर लिखी गई अपॉलोजी तसनीफ़ का गुजराती में तर्जुमा भी किया, जिसको लिखा था प्लेटो ने। गांधी ने सकरात को सच्चाई का सिपाही कहा। इनके अलावा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के सियासी कामों से भी काफ़ी मुतासिर हुए। इनके अलावा कुछ और मशहूर ज़माना शख्सियात जिन्होंने डाला गांधी की ज़िंदगी पर असर, जिनमें शामिल हैं शिबली नोमानी, ज्योतिराव गोविंद राव, सिद्धार्थ गौतमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्नीस 1917 में गांधी ने अपनी पहली तारीख का आगाज़ किया, जो चंपारण मूवमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसका मकसद था महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों के साथ ब्रिटिश सरकार की तरफ से हो रही नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना। ये तहरीक 1920 में शुरू हुई। गांधी जी का इस तहरीक को चलाने का मकसद था तमाम मज़हब के लोगों को एक साथ लेकर अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। गांधी जी का मानना था अगर लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे तो ब्रिटिशर ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएंगे। इस तहरीक में भी स्कूल, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कपड़े वगैरह का बायकॉट किया गया। दिए गए तमाम टाइटल्स और अवार्ड्स को वापस कर दिया गया। इसी तारीख में अपने स्कूल बनवाने का फ़ैसला लिया गया, जिनमें गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल विद्यापीठ, जामिया मिलिया दिल्ली जैसे तालीमी इदारे शामिल थे। इसी तारीख में चोरी चोरा हादसा हुआ जिसमें 22 पुलिस वालों को लोगों के हजूम ने जिंदा जला दिया।
इस तारीख में ब्रिटिशर का काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, मगर जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी लोगों को जेल में बंद कर दिया और लोगों के इसी नौ वायलेंस की वजह से ये तारीख ज़्यादा कामयाब न हो सकी। इस तारीख का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये तारीख 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसमें गांधी और 70 अफराद इनके साथ साबरमती आश्रम से पैदल डांडी के लिए रवाना हुए। इस मार्च में गांधी और इनके साथियों ने 385 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इसमें गांधी जी ने साल्ट एक्ट को ख़त्म किया। यह एक्ट 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगाया गया था। भारत छोड़ो यात्रा, जिसको क्रांतिकारी तारीख के नाम से भी जाना जाता है, इस तारीख को दूसरी जंग अजीम के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिशर और जापान आमने सामने थे, तो ब्रिटिशर के हिंदुस्तान में होने की वजह से जापान हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को अपना निशाना बना रहा था। इसके लिए 1942 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जो वर्धा रेजोल्यूशन या क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 19 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक जलसा मुनाकिद किया गया। इस जलसे में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया। पहली बार गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया और लोगों से कहा कि या अब तो मुल्क को आज़ाद करा लो या इसके लिए अपनी जानें दे दो। दूसरी तारीख जो गांधी की जानिब से शुरू की गई उसका नाम था खेड़ा मूवमेंट, जो 1918 को गुजरात के ज़िला खेड़ा से शुरू की गई, जिसका मकसद था अंग्रेज़ों की जानिब से खेड़ा ज़िला के लोगों पर आयदशुदा टैक्स को माफ़ करवाना। गांधी जी हमेशा जो है वो वायलेंस के खिलाफ थे। आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने जो वो कांग्रेस ज्वाइन की थी, यूं कि आप कहते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी जो उसके अंदर जो है वो गांधी जी का काफ़ी एक अच्छा रोल रहता है। उनका जो पूरा इरा है उसके अंदर आप उठा के देखते हैं कि गांधी जी हमेशा जो है वो वायलेंस के खिलाफ थे। आपने देखा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे कि जिनमें जो है गांधी जी की जो सरबराही में बहुत सारी मूवमेंट चली थी। तो आप लास्ट पे देखते हैं कि गांधी जी एक जो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, आपने उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जिसमें जो बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, उस डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया के लोग थे, वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो कुछ अंग्रेजी सिपाही होते हैं जो वो उसके अंदर कुछ जल जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो अपना जो एक जो उनका चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था, उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर। इसलिए कि वो हमेशा से आपने देखा होगा कि गांधी जी हमेशा क्या करते थे कि जो ये आप कहते हैं कि वायलेंस के हमेशा खिलाफ थे। वो चाहते थे, कोई भी हल चाहते थे, कोई भी वो इस तरह का जो जब भी मुसीबत का ऐसा वक्त था तो वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई भी जो मुसीबत का वक्त है उसके लिए अच्छा रास्ता निकाला जाए। So let's discuss about the books written by Gandhi ji. The first book is My Experiments with Truth. The story My Experiment with Truth is the autobiography of Mahatma Gandhi, covering his life from early childhood through to 1921. It was written in weekly installments and published in his journal Navjivan from 1925 to 1929. Its English translation also appeared in installments in his other journal Young India. It was initiated at the insistence of Swami Anand and other close co-workers of Gandhi. So the next book is Hind Swaraj or Indian Home Rule. Hind Swaraj or Indian Home Rule is a book written by Mohandas Karamchand Gandhi in 1909. In it, he explores his views on Swaraj, modern civilizations, mechanization, among other matters. In the book, Gandhi reputedly European civilization while expressing loyalty to higher ideal of empire. Then let's discuss about India of My Dreams. The book India of My Dream is a collection of passages from writing and speeches of Mahatma Gandhi. In this book, another discuss about the various aspects of Indian culture and its heritage and about the society at large. Next is Satyagraha in South Africa. As the title Satyagraha in South Africa offers a historical account of Mahatma Gandhi's leadership of non-violent resistance by Indian immigrants against the South African government. The next book is My Life is My Message, which is a famous book written by Mohandas Karamchand Gandhi.
The story shows an elderly Gandhi reflecting on his life, remembering how his experience with British colonial authority in South Africa and India taught him that anger and hatred should be met with love and respect. The next book is Third Class in Indian Railways. In the essay Third Class in Indian Railways by Mahatma Gandhi, we have the theme of class, acceptance, desperation, dependency, greed and hygiene. Taken from his selected works collection, the reader realizes from the beginning of the essay that Gandhi may be exploring of the theme of class. So the next and the last one is the words of Gandhi. The words of one of the greatest men of the 20th century, chosen by the award-winning director Richard Attenborough from Gandhi's letters, speeches and published writings, explore the prophet's timeless thoughts on daily life, cooperation, non-violence, faith and peace. गांधी ऑन रिलीजन. गांधी मज़हब के रवायती तस्वुर से अलग एक आफाकी मज़हब में यकीन रखते थे. वो मज़हब को सिर्फ रसूम व रवाज और इबादतों का मजमुआ नहीं समझते थे, बल्कि वो एक ऐसे आफाकी व आलमगीर मज़हब में यकीन रखते थे जो इंसानियत पर मबनी तमाम मज़ाहिब की अच्छाइयों पर मबनी हो. चनाचा उन्होंने 14 मई 1920 को यंग इंडिया में लिखा था कि मैं उस मजहब को मानने वाला हूं जो इंसान की फितरत को बिल्कुल बदल देता है. गांधी के मुताबिक मजहब दरअसल तलाश हक का नाम है जिससे इंसान रूहानी सुकून हासिल करता है. चनाचा गरीबों व कमजोरों की खिदमत ही सबसे बड़ा मजहब है. वो मजहब के मुनकर नहीं थे, लेकिन वो मजहब को एक महदूद दायरे में देखना भी नहीं चाहते थे. वो किसी भी एक मजहब की बरतरी के कायल नहीं थे, बल्कि तमाम मज़ाहिब को मसावी काबिल एहतराम समझते थे और इसीलिए वो तब्दीली मजहब को पसंद नहीं करते थे. चनाचा गांधी के नज़दीक मजहबी अकीदे के मुकाबले में मजहबी कदरें अहम थी. गांधी थॉट ऑन रिलीजन. महात्मा गांधी की ज़िंदगी में मज़हब का बहुत अहम रोल था. उन्होंने गीता को पढ़कर पूरी ज़िंदगी को बदल डाला. वो कहते हैं कि हम सब मज़ाहिब एक हैं, यहाँ पर सिर्फ मानने वाले अपने अपने अलग सकाफ़त के साथ मानते हैं. ये रब जो है वो अल्लाह के नाम से जाना जाता है, वो राम के नाम से जाना जाता है, वो रहीम के नाम से जाना जाता है. वो कहते हैं कि तमाम मज़हब का एक ही स्तून है, एक ही उनका आखिरी मंजिल है, वो है सच. Truth is the cornerstone of the edifice of Gandhi's metaphysics. As we all know that one, he has given much importance for the truth. In his autobiography, he has simply language and he has given that he has testifies to the love of truthfulness which was ingrained in him since as he was a child. We have to rule our life by this law of truth, he has said. And he has said that honesty is the best policy which we are imbibed in us from our childhood in each and every one. What we are seeing, Gandhi is in each and everybody's life we are seeing. That is, everybody likes truth and everybody wants to talk about the truth. So honesty is the best policy in the sense that what I am preferring here is about truth. We must say yes only when we mean yes. We have to say no when it means by no. That means that regardless of consequences, whatever is coming, we should not be behind telling the truth. Truth will always win. That must be the motto of each and everyone in the society who are living. Truthfulness in thought, truthfulness in words and truthfulness in deeds. These are the three things where Gandhi speaks about, and he gives much importance for the ethical values, uniformity and also harmony and cooperation in the society. When you speak truth, there won't be any kind of fear. When you are speaking about the truth, you will do the things according to the ethical values which are imbibed in us. So he speaks about that one. When we are speaking, if we are saying something and we in the action or in the deeds, if we are doing something else, it is not correct. So we have to be truthful. Some important facts about Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी वो इंसान थे जिनके बारे में मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली नस्लों को ये यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई इंसान इस धरती पर पैदा हुआ था. 1930 में जब गांधी इंग्लैंड में थे तब उन्होंने यहीं से अमेरिका के लिए रेडियो पर एक भाषण दिया था. जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब माइक को देखकर गांधी ने चौंक कर कहा कि यही वो चीज़ है जिसके अंदर मुझे बोलना है.
ایپل کے فاؤنڈر اسٹیو جابس گاندھی سے کافی متاثر تھے. وہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے گاندھی جیسے ہی گولڈ فریم کے چشمے پہنا کرتے تھے. گاندھی جی کا نک نیم مونیا تھا. ان کے والدین اور دوست انہیں اسی نام سے پکارا کرتے تھے. گاندھی کبھی کبھار یاترا کے دوران اپنی بکری ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ وہ تازہ دودھ پی سکیں. گاندھی نے اپنی زندگی کے 2338 دن جیل میں گزارے. 1948 میں نوبل پیس پرائز کسی کو بھی نہیں دیا گیا. یہ مانا جاتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے احترام میں ایسا کیا گیا. گاندھی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا. اقوام متحدہ نے 2007 میں گاندھی کے یوم پیدائش 2 اکتوبر کو عدم تشدد کے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا. گاندھی کو 5 بار امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا لیکن انہیں کبھی یہ ایوارڈ نہیں ملا. اس ایوارڈ کے لیے انہیں سب سے پہلے 1937 پھر 1938 پھر 1939 پھر 1947 اور 1948 میں نامزد کیا گیا. 1948 میں نوبل پیس پرائز مرنے کے بعد نہیں دیا جاتا تھا. گاندھی جب افریقہ میں تھے تو 11 بار ان کو جیل بھیجا گیا. ایک بار وہ 4 دن کے اندر 3 بار گرفتار ہوئے اور جیل گئے. گاندھی جی ہر روز 18 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے اور خاص کر 1944 سے لے کر 1948 تک یہ مانا جاتا ہے کہ وہ 69,000 کلومیٹر چلے.